This is what we are going to have a look on. That is communication. यूनिट 1 तक मिक्स मैं करूँगा हिंदी एंड इंग्लिश, फिर धीरे धीरे इंग्लिश में यूनिट्स होते चले जाएंगे. ठीक है. होप यू ऑल आर comfortable with this idea. So I will be taking you through communication, fundamentals of communication. Under this fundamentals, we will be looking at definition and meaning of communication, process, types, flow. We'll also look at grapevine. Then levels of communication. How can we make our communication effective? Towards the end, we will look at barrier to communication and technical writing. How to make our technical writing effective, and what is the difference between general writing and technical writing. ये पूरा एक दिन में नहीं होगा. It will take time. Okay. So let us begin. Many of us think that whatever language, जो भी language हम बोलते हैं वो communication होता है. नहीं, communication altogether एक different aspect है. Language is just a tool. छोटा सा tool होता है language. Language के कुछ functions होते हैं. I'm not going to get into linguistics or compound linguistics any far, right? So language is just a tool of communication. Language helps us in communicating with another person or another individual. But communication जो होता है वो एक अलग aspect है. Word communication has been taken from communicare. It is a Latin word which was further developed into communicus and Greek. Communicare means to exchange, interchange, impart, flow, or engage into a delivering ideas, right? So communicare normally means to exchange, to interchange, to impart, to flow, to engage into, right? So when we go further, we have to understand that communicare never says to share. Sharing is altogether a different thing. Although books में आपको मिलेगा कि communication is the process to share ideas and so forth, but it is not to share. Be very clear about it. Sharing का मतलब होता है एक piece of information. जैसे एक piece of information, एक particular information को अगर हम compare करें with a roti or with a piece of bread, right? तो हम उसको शेयर कैसे करते हैं? हम उसको डिवाइड करते हैं मल्टीपल पार्ट्स में, राइट? मॉर्सेल्स में, निवाले में डिवाइड करते हैं और उसके बाद उसको हम आपस में फ्रेंड्स जो है वो बैठ के शेयर करते हैं. तो जो निवाला या जो पार्ट जो भी उसके टुकड़े हैं वो जब हमने दूसरे को दे दिया, नाउ दैट इज कॉल्ड शेयरिंग. बट वो जो टुकड़ा दूसरे को दिया, जो पार्ट दूसरे को दिया, वो पार्ट मेरे पास नहीं है. और अगर इस शेयरिंग के फॉर्मूला को अगर हम यहाँ लगाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, राइट? तो कम्युनिकेशन मीन्स द एक्सचेंज, इंटरचेंज, फ्लो ऑफ आइडियाज और इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन और व्यूज. सो अगर हम आइडियाज शेयर करेंगे, नॉर्मली हम एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ आइडियाज. ओके, शेयरिंग ऑफ आइडियाज हो सकता है, बट जैसे मैं अपने आइडियाज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अब जो आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया वो टुकड़ा मेरे पास से निकल गया, आपके पास चला गया, अब वो मेरे पास नहीं है.
अगर बात हो रही हो कम्युनिकेशन की, आई एम इंटरैक्टिंग विद यू इन अ सेशन, एकेडमिक सेशन, तो जो ज्ञान मेरे पास है अगर मैंने आपके साथ शेयर कर लिया तो फिर वो ज्ञान मेरे पास से चला गया, मेरे पास नहीं है। सो इट इज नॉट दैट शेयरिंग, इट इज एक्सचेंज। मेरे से आप कुछ सीखते हो, मैं आपसे कुछ सीखता हूँ, इट इज एक्सचेंज। आप एक इंफॉर्मेशन देते हो, मैं एक इंफॉर्मेशन देता हूँ। अब वो इंफॉर्मेशन मैं कैसे दूंगा, दैट दैट इज नॉर्मली we falter, we are incorrect while we are saying we share it. We never share it. तो कैसे करते हैं हम कम्युनिकेशन? लेट्स लुक एट द साइकिल और प्रोसेस। सेंडर है, रिसीवर है, दो अलग अलग से sender is person A and receiver is person B. I am person A, you are person B. Now I'm exchanging my idea, I'm exchanging an information with you, right? अब वो इंफॉर्मेशन मैं कैसे आपके साथ एक्सचेंज कर सकता हूँ, कैसे आपके पास भेजूंगा मैं? या तो मैं बोल के भेज रहा हूँ, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ एक शब्द है, शब्द के अंदर बहुत सारे अक्षरस हैं, राइट? अब मैं जो बोल रहा हूँ वो लेटर्स बोले जा रहे हैं, प्रोनाउंस किए जा रहे हैं, ना कि लिखे जा रहे हैं। आपके सामने जो लिखा है सेंडर, एनकोडिंग, मीडियम, और ऊपर में लिखा है हाउ डज इट वर्क, राइट? अब आपको कैसे पता इसका मतलब, हाउ डज इट वर्क? HOW is one word. WHO is also one word. OHW is no word, right? तो लेटर्स को एक पर्टिकुलर तरीके से हम सजाते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके से हम अरेंज करते हैं उसके मीनिंग के हिसाब से। उसी तरह से जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं हाउ, हाउ डज इट वर्क, हाउ, ह, आ की मात्रा, एंड ऊ। तो तीन डिफरेंट साउंड्स हैं, उन तीनों साउंड्स को हम एक साथ ले आते हैं, उसका एक मतलब बनता है, राइट? तो मेरे पास एक आइडिया है, मैंने उस आइडिया को बोल करके हो या लिख करके हो, तो मैंने उसको कोड करते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आइडिया इनटू, कन्वर्टिंग माय आइडिया इनटू लैंग्वेज इज कॉल्ड एनकोडिंग। जैसे शायद पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा हो सी लैंग्वेज में कि जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज जब हम यूज करते हैं, जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज यूज करते हैं, तो एक हाई लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला कंपाइलर कहा जाता है, ठीक? अब वो करते क्या है, हम कोडिंग करते हैं वहां, जो कि मशीन समझ सके और उसके बाद हमें एक रिजल्ट मिल सके जो हम कोड कर रहे हैं जिसके लिए। तो उसी तरीके से जब हम आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज जब हम सामने रखते हैं, तो उसको हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोड करते हैं। इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, अरबी हो, Tamil ho, Telugu, whatever language we use, we code that idea or information in a particular language with the help of letters, sounds, words, sentences, paragraphs, right? So sender codes an information or an idea. That coded idea is sent through a medium to the receiver. अब मीडियम क्या हो सकता है? रिटन मीडियम हो सकता है, ओरल मीडियम हो सकता है, कुछ इशारों के मीडियम भी हो सकते हैं, जैसे किसी को बुलाना होता है हम इशारा करते हैं, राइट? दैट इज ऑल्सो अ मीडियम। सो सेंडर encodes an idea, codes an idea, sends that idea, coded idea, through a medium to the receiver. अब रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर receives that idea, decodes that idea, right? And after decoding, आपने अब
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिखा, इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है हमारे और आपके बीच में, सो यू अंडरस्टैंड। ऊपर में लिखा है द कम्युनिकेशन प्रोसेस और साइकिल, सो यू नो सेंडर, यू नो व्हाट इज द मीनिंग, राइट, मीडियम, रिसीवर, यू नो द मीनिंग, राइट। सो आपने मेरे भेजे हुए कोड को डिकोड किया, और डिकोड करने के बाद उसको समझा। उस समझने के बाद अब मेरे पास कोई रिप्लाई आनी चाहिए, तो उस आपने एक फिर से मैसेज कोड किया, आइडिया कोड किया, उस कोड को रिप्लाई या फीडबैक के थ्रू आपने मेरे पास भेजा, सेंडर के पास। सेंडर ने उसको डिकोड किया, फीडबैक को या रिप्लाई को डिकोड किया, और डिकोड करने के बाद ये देखा कि जो आइडिया सेंडर ने रिसीवर को भेजा था, क्या रिसीवर ने उसको पूरी तरीके से समझा है, आधा समझा है, बिल्कुल नहीं समझा है। कैसे पता चलेगा? जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम्स क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि मैंने, मान लो मेरा मेरे पेपर का एग्जाम है, मैंने आपको कोई कॉन्सेप्ट बताया, ठीक, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने उस कॉन्सेप्ट को कितना समझा है, और उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एग्जाम हुआ, राइट। मैंने कोड करके एक क्वेश्चन पेपर आपके पास दिया, उसमें इंग्लिश में लिखा है क्वेश्चन, राइट, कोडेड मैसेज है। मीडियम क्या हो गया? क्वेश्चन पेपर, रिटन मीडियम। आप हो गए रिसीवर, आपने क्वेश्चन पेपर देखा, क्वेश्चन पेपर देख करके उसके आंसर्स अपने, मतलब क्वेश्चन समझा, समझ के आपने आंसर लिखा इंग्लिश में, और उसके बाद आपने कॉपी सबमिट कर दी, दैट इज योर फीडबैक। अब वो कॉपी मेरे पास आई, कॉपी मैंने पढ़ा, आपने जो मैसेज लिखे हैं उसको मैंने डिकोड किया कि क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट, एंड देन मैंने समझा कि आपको कितना मार्क्स मिला। अब मेरे से आपका, अब जो सेंडर है, जैसे मैं सेंडर हूँ, मैंने आपको एक आइडिया भेजा कोड करके, आप रिसीवर हैं, आपने उसको रिसीव किया, राइट, रिसीव करके डिकोड करके समझा, समझ करके फिर अपना एक रिप्लाई कोड करके भेजा, राइट। Who is this? Okay, thank you for the attendance. I got it. वेलकम। ठीक है, तो आपने आपने उसको समझा, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग पे आपको मार्क्स, आपने जितना समझा, जिस तरीके से उसको कोड किया, मेरे पास भेजा, तो मैंने आपको मार्क्स। अब सेंडर जो है वो एक आइडिया भेज रहा है, रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है, ठीक। अब जब रिसीवर एक फीडबैक भेज रहा है सेंडर को, तो यहाँ रोल रिवर्सल होता है। पहले सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज रहा है, अब रिसीवर सेंडर को मैसेज भेज रहा है। सो सेंडर बिकम्स रिसीवर, रिसीवर बिकम्स सेंडर, ठीक है। तो एक रोल रिवर्सल होता है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। आपने कितना समझा, नहीं समझा, आपने वो फीडबैक मुझे दिया। जब आप मुझे फीडबैक दे रहे हो तो मैं रिसीवर हूं, आप सेंडर हो, राइट। सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि आपने, you understood it and you sent me a feedback, right? I judged you based on the feedback. What was the portion and how much the portion that you have understood, right? So जो feedback है वो desired है, undesired है। मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के घर गए, वैसे कोरोना के टाइम पे जाना नहीं आप लोग, किसी के घर गए, आपसे उसने पूछा पानी पियोगे, आपने बोला हाँ ठीक है, जूते बाहर निकाल दिए,
उसने कहा नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ पानी पियोगे। आपने बोला हाँ मैंने बाइक अपनी लॉक कर दी है। वो फिर पूछा पानी पियोगे, मैं पूछ रहा हूँ पानी पियोगे। बोला नहीं नहीं मैं घर पे ना वो बुक्स रख के आया हूँ। सो इज द सेंडर हु इज सेइंग पानी पियोगे गेटिंग डिजायर्ड फीडबैक? उसको क्या चाहिए? हाँ मैं पानी पीऊंगा, नहीं मैं पानी नहीं पीऊंगा, राइट? उसको मिल क्या रहा है सेंडर को? बाइक लॉक कर दी है, जूते बाहर निकाल दिए हैं, बुक्स घर पे छोड़ दी है, राइट? सो जो फीडबैक है, जो रिप्लाई है सेंडर के लिए, ठीक है, वो डिजायर्ड नहीं है। जब डिजायर्ड नहीं है मतलब वो मिसकम्युनिकेशन। व्हेन द फीडबैक इज अनडिजायर्ड, दैट इज मिसकम्युनिकेशन। व्हेन द फीडबैक इज डिजायर्ड, मैं जो पूछ रहा हूँ पानी पियोगे, आपने कहा हाँ पीऊंगा, सो आई गॉट अ डिजायर्ड फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडा पियोगे नॉर्मल पियोगे? ठंडा पीऊंगा, डिजायर्ड फीडबैक, राइट? तो जब डिजायर्ड फीडबैक होती है तो हमारा कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होता है, उसमें मिसकम्युनिकेशन नहीं होता है। लेकिन डिजायर्ड फीडबैक अगर नहीं है, अनडिजायर्ड फीडबैक है, तो वो मिसकम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट होता है और वो साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक कि फीडबैक डिजायर्ड नहीं होगा। अगर फीडबैक कभी डिजायर्ड नहीं होता है तो दैट इज इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन, राइट? सो sender sender has an idea. Process of having that idea is called ideation. So sender has an idea. Sender codes that idea in a particular language or in a particular method, right? Order. Then sender sends that encoded idea through a medium to the receiver. The receiver receives that idea, decodes that idea, understands that idea. Upon understanding, encodes a reply, sends that reply through a particular medium to the sender. Now, sender becomes receiver. Sender receives that feedback or reply, decodes that reply, understands that reply, whether that reply is equal to the encoded message in the beginning. अगर इक्वल नहीं है, जो रिप्लाई आया है वो इक्वल नहीं है, डिजायर्ड नहीं है, मींस देयर इज सम प्रॉब्लम इन द होल साइकिल और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसीवर, राइट? सो दैट साइकिल विल गो ऑन। अब कहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है? मीडियम में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि किस मीडियम के थ्रू हम भेज रहे हैं, प्रॉब्लम वहां भी हो सकती है और भी ढेर सारी जगह हो सकते हैं। तो जो मीडियम में प्रॉब्लम होती है दैट इज आल्सो कॉल्ड बैरियर टू कम्युनिकेशन और नॉइस, ऑलराइट? सो we will deal with barrier to communication towards the end of this whole PowerPoint, whole discussion. And also I will share with you one more PowerPoint. Okay, so if you have understood this communication, then we can move ahead. If anybody has got any confusion, ask me now. क्योंकि अगर अभी नहीं समझ पाओगे कम्युनिकेशन तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी आगे सारी चीजों में। अभी अगर समझ लोगे, 100% समझ लोगे, इसका मतलब आगे क्लैरिटी रहेगी। क्योंकि हम लोग आगे जाके ये कम्युनिकेशन प्रोसेस बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। सो एनीबडी हैज गॉट एनी प्रॉब्लम? एनोटेशन ऑन है, आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, मैं समझ जाऊंगा, उस चीज को मैं डील करूंगा, डिस्कस करूंगा फिर से। अगर नहीं है 10 seconds later I will move ahead. Okay, so I take it for
take it as you do not have any major problem with this concept of communication. Do not forget to write your name there, name and branch, क्योंकि मैं और भी branches में हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि किस branch को मैं deal कर रहा हूँ. So with your name and branch, you send me that query. I will try to explain that query. अगर लिखने लायक होगा, बहुत सारा नहीं लिखना होगा, थोड़ा बहुत लिखना होगा तो मैं उसमें लिख दूंगा. Otherwise, I will send you one video, short video or an audio. ठीक है? So let's move ahead. Now comes types of communication. कम्युनिकेशन तो हमने देख लिया, समझ लिया, कम्युनिकेशन प्रोसेस भी समझ लिया. सो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग एन आइडिया और इंफॉर्मेशन और orders, instructions, right? Now, types of communication. First one is verbal communication. Second one is non-verbal communication. First, verbal communication. Verbal means connected with words and use of words. Do not forget it. Verbal communication is not oral. हम लोग कहते हैं verbally उसने बोल दिया. Verbally बोल दिया मतलब orally बोल दिया. No. वर्बल का मतलब होता है यूज ऑफ वर्ड्स, जहां वर्ड्स यूज किए जाते हैं. जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो वहां वर्ड्स का यूज करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन. राइट? सो द वर्ड वर्बल मीन्स कनेक्टेड विद वर्ड्स एंड यूज ऑफ वर्ड्स. Any communication that involves words is called verbal communication. So remember this thing. वर्बल अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ वर्ड्स. ठीक है? अब यूज ऑफ वर्ड्स कहाँ कहाँ होगा? तो रिटन में और ओरल में. सो दीज आर टू सब टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अब बहुत सारे चीजें होती हैं जिसमें वर्ड्स का यूज होता है. या फ्रेंड्स हैं तो वो टच करते हैं एक दूसरे को, हैंडशेक करते हैं, कंधे पे हाथ रख के चलते हैं, तो दैट शोज दैट दे आर फ्रेंड्स, राइट? सो दैट टच इज आल्सो. देन आप अपने फ्रेंड्स के साथ आराम से बगल बगल में बैठते हो, ठीक? क्या उतने ही बगल में आप किसी स्ट्रेंजर से बैठ के बात करते हो? राइट? हाँ, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे मेट्रो में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो वहां पे और कोई रास्ता नहीं. सो वहां पे नहीं. बट नॉर्मल डे टू डे कम्युनिकेशन में स्पेस का जो स्पेस है, जो डिस्टेंस है, दो इंडिविजुअल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज ऑल्सो काउंटेड. आप अगर बोल सकते हो, लेकिन जो स्ट्रेंजर है तो आप दूर से बात करना पसंद करते हो. ठीक? अच्छा, कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो तो चाहोगे कि मेरा फ्रेंड जो है वो मेरे बिना बोले भी समझ जाए. अब बिना बोले कैसे कोई समझेगा? तो उसका एक एग्जांपल है. एक बार एक स्टूडेंट सुबह में अपने घर आया देर से, तो उसके डैड ने उससे पूछा कि कहाँ गए थे. तो बोला दोस्तों के साथ गया था ग्रुप स्टडी करने के लिए. बोला ओके, ग्रुप स्टडी करने गए थे, बहुत अच्छी बात है. किस किस दोस्त के साथ थे? तो उसने 4 दोस्तों के नाम बताए. डैड ने पहले दोस्त को फोन लगाया तो उसने बोला हाँ अंकल, अभी अभी निकला है, वो यही था, मेरे साथ था, पढ़ाई कर रहा था, अभी निकला है. दूसरे दोस्त ने फोन किया, दूसरे दोस्त को डैड ने फोन किया तो बोला हाँ अंकल, अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो अभी वॉशरूम गया है. तीसरे दोस्त को फोन किया तो बोलता है तीसरा दोस्त कि हाँ अंकल, सामने बैठा है, बात कराऊं क्या? और तो और जब फोर्थ फ्रेंड को फोन किया तो बोलता है कि हाँ डैड बताइए, उसी की आवाज में. राइट? सो how do how does the friend how does that friend or those friends
अंडरस्टैंड, बिना बोले कैसे बात होती है. There are certain things which are unsaid, right? So that is non-verbal communication. So apart from using words, communication is done through various other ways. That includes gestures, postures, आप कैसे बैठते हो, आपके हाथ कैसे मूव करते हैं, hand movements, touch, etc. According to experts, that non-verbal communication contributes around 70% of total communication. कुछ एक एक्सपर्ट्स हैं जो सजेस्ट करते हैं कि 93 as high as 93% of communication is done in non-verbal communication, non-verbal way. ठीक है. और कुछ एक सॉरी कुछ एक एक्सपर्ट्स हैं जो कहते हैं कि 60% तक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है. सो अभी जैसे कोरोना काल है, कोरोना काल में हम सब लोग वर्चुअली हैं, तो यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थोड़ा कम है, वर्बल कम्युनिकेशन थोड़ा ज्यादा है, राइट. सो फिर भी upon the whole, if you take an average, it is approximately 70 to 80%, 75 to 80% of total communication is non-verbal communication. So remember, non-verbal communication is higher than verbal communication. So written और oral के अलावा written और oral जो है वो 20 to 25% contribute कर रहा है total communication में. 75 to 80% non-verbal communication होता है. तो we have to understand that while we are communicating, we have to control our non-verbal things. We have to understand them, right? Because that is majority. ठीक है. सो अब इसके बारे में हम लोग रिटन, ओरल और बाकी चीजों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में कल बात करेंगे हम लोग. ठीक है. I will be sending this PPT to you all. और PPT जब भेजूंगा उसको आप लोग पढ़िएगा और उसमें देखिएगा. उसमें कोई कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो यू आस्क मी दैट. ठीक है. So anybody has got any queries so far? You can ask me now. If nobody has any query, then we can end this session. Yeah. Sir, Tell me. sir, Abhishek. what is the difference between sir miscommunication and incomplete communication? Sir, are they same? नहीं, they are not the same. Miscommunication जैसे कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि पानी पियोगे, तो बात कर रहा है कि मैंने बाइक उनको लॉक किया है, मैंने जूते बाहर उतारे हैं. सो दैट इज मिसकम्युनिकेशन. वी आर नॉट गेटिंग इवन अ सिंगल पॉइंट इन फीडबैक विच इज डिजायरेबल. कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है. ठीक. इनकम्प्लीट फीडबैक, इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन जो होगा वो होगा जहां पर 100% अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो रही है रिसीवर की. जो मैसेज मैंने भेजा 100% एज अ सेंडर, वो 100% अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो रही है, बट कुछ एक पार्ट उसमें से मुझे डिजायर्ड फीडबैक मिल रहा है, डिजायर्ड रिप्लाई मिल रहा है. फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे पूछा कि ओके टेल मी द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. ओके. अब वहां पे आपने बोला कि कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस एंड थॉट्स. ओके. यहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगा दिया, छोड़ दिया, राइट. आपको मैंने पूछा क्या था, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. आपने कम्युनिकेशन बताया, दैट इज गुड, दैट इज वन पार्ट ऑफ द होल क्वेश्चन, वन पार्ट ऑफ द होल आइडिया, रिप्लाई जो आप दे रहे हो. ठीक. सो बट देन इट इज नॉट कंप्लीट. तो दिस इज इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन. मिसकम्युनिकेशन, अगर मैंने आपसे बोला कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन और आप मुझे शोले की कहानी लिख के दे दो, that is miscommunication. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, Abhishek? Yes, sir. Thank you, sir. Any other query? No query? Great. So we meet tomorrow
अच्छा, हमारी जो क्लास होगी एक्चुअली, माय सन्स क्लास गोज टिल 12 o'clock, ठीक है। तो हम लोग 12:05 से या 12:15 से लेकर के 1 o'clock तक हम लोग सेशन रखेंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। हम लोग आपको 11:40 टू 12 या 12:15 तक का ब्रेक भी मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, सो एंड आई एंड दिस क्लास नाउ, दिस सेशन नाउ। बी सेफ, बी हेल्दी, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, कोरोना से सावधान रहें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. बाय 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 बाय। ये कौन